Welcome, dear friends. As you know that already 12th board exam has started, and economics paper has a lot of timetable glitch in the sense that few students have taken painting, and there is no gap for such students. So naturally, these students need to have a very properly planned reading habits. Otherwise, there's so much dot. So to help them, I am also trying to make few important topics, few important questions, so that they can go through these questions and can take advantage of out of that. One thing students can do, they can read out these notes, they can record these notes, and whenever they are not in study mood, or they are preparing, they have already 2 or 3 hours they have solved maths or whatever subject it is, they can when there is a spare time, means they are not in mood to study, or they are eating or something like that, they can start this recording, and they can gain something out of that. Why I'm saying so? Because I was having a 104-degree temperature when I was in MA economics. Examination was there next day, and it was a continuous 4 to 5 days of viral fever, and I was not in mood. So I did same thing when I used to take medicine. Temperatures goes down, and then I utilize that time to read the lesson, record the lesson, and then when there is a fever high, then I used to listen it, and it has given me the good result. That's what same thing I would like to implement on my kids, and I always pray Almighty, and they should be very healthy. They should take proper diet, and their result should be good. So, with that motive, I am preparing this lesson, and this in this topic is included important points, flow charts, and some extra questions. I will just I will not do explain much, but only thing I will read it. Economic system are generally of three different kinds. So whenever this type of question suppose asked, you need to make a flow chart. So it is a capitalist economy, socialist economy, and mixed economy. Okay, so like that you can make a flow chart. Then it's the capitalist economy. They basically there are two types of economy. When I used to make the flow chart, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी को दो अलग अलग एंड पे लिखता था, और मिक्स्ड इकोनॉमी को बीच में। इससे क्या फ़ायदा होता था कि ये क्लियर हो जाता था कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों का मिश्रण है मिक्स्ड इकोनॉमी। और इनकी डिफिनेशन देखिए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमी देखिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट सेक्टर। इन दोनों का फीचर आपको नजर आएगा मिक्स्ड इकोनॉमी में। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स आर अलॉटेड रिस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग इकोनॉमीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स। इसको हम ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि द मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वेयर देयर इज अ को प्रेजेंस ऑफ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, सो वो दोनों का को प्रेजेंस मतलब कैपिटलिस्टिक में पब्लिक इंडिविजुअल ओनरशिप हो जाता है, सोशलिस्टिक पैटर्न में गवर्नमेंट का ओनरशिप हो जाता है। तो दोनों का यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है। अब आते हैं 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आएंगे, किसी भी रूप में आए लेकिन आएंगे जरूर। ओके, तो 4 बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स क्या हैं? ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी, इसको याद रखेंगे। ग्रोथ, जिसे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हो, जीडीपी है ना। तो ग्रोथ मतलब जीडीपी का बढ़ना ग्रोथ है। इसके मतलब जीडीपी कैसे बढ़ेगा? जब प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। तो क्वांटिटी दो चीज़ें हैं, और अगर प्राइस और टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी उसी के रूप में हम जीडीपी को डिफाइन करते हैं। तो अगर टोटल वैल्यू तो पी इंटू क्यू हुआ, तो अगर मान लीजिए क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी? जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उतना ही क्वांटिटी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को दिमाग में इस तरह से रीड आउट करें, जिससे कि आपका मैक्रो का भी कॉन्सेप्ट आप इसको इंक्लूड कर पाएँ, और यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग यहाँ करेंगे तो आपके लिए एडवांटेज होगा।
तो ग्रोथ क्या है, एम्स टू इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ, टोटल वैल्यू, तभी जब कैपेसिटी बढ़ेगी तभी टोटल इंक्रीज होगा। मॉडर्नाइजेशन क्या, एम्स एट एडेप्टिव एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। मॉडर्नाइजेशन तो ये केवल इकोनॉमी टेक्निकल नो हाउ की बात नहीं करता है, बल्कि सोशल आउटलुक की भी बात करता है। दोनों मॉडर्नाइजेशन का मतलब होगा। सेल्फ रिलायंस क्या है, एम्स टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। इक्विटी क्या है, एम्स टू इंश्योर दैट एवरी वन गेट्स बेसिक नीड्स एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ये इक्विटी है। तो इस तरीके से एज ऑल द गोल्स कैन नॉट बी गिवन इक्वल इम्पॉर्टेंस इन ऑल द plans, different goals are emphasized in different plans in India. However, the planners have to ensure that as far as possible the policies of the plans don't contradict the four goals mentioned above. ओके, तो पॉलिसीज ऑफ फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए क्या पॉलिसी अपनाएगी। द मेजर्स अंडरटेकन टू प्रमोट द ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज द लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहला जो एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स और ग्रीन रेवोल्यूशन मेजर्स, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स involves change in ownership of land holding through abolition of intermediaries and land ceiling। तो इंटरमीडिएरीज को हटाने की बात थी और लैंड सीलिंग को पर कंट्रोल लगाने की बात थी कि लैंड सीलिंग लगाया जाए, जिससे जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं उनके ज़मीनों को ले लिया जाए और उनको बांट दिया जाए जिनके पास ज़मीनें कम हैं। ओके, तो ग्रीन रेवोल्यूशन रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ food grains due to use of HYV seeds, high yielding variety seeds। ये अर्जेंटीना से आया था, इतना डिटेल बोलने की जरूरत नहीं फिलहाल, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज पर IPR 1956। ठीक है, IPR 1956 से इससे हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में था। तीन तरह के क्लासिफिकेशन की बात की गई थी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए क्या है, कॉम्प्रोमाइजेज comprises of industries exclusively owned by state। पहला शेड्यूल में क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड एंड ऑपरेटेड जो इंडस्ट्रीज थे उनको रखा गया था। शेड्यूल बी में comprises of 12 industries which would be progressively state owned। ठीक है, तो इसमें क्या था, 12 ऐसी इंडस्ट्रीज को रखा गया था और भी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, ये भी स्टेट ओन्ड थी। ठीक है, और ए और बी में डिफरेंसेस क्या थे, इसको भी समझने की जरूरत है कि ए और बी में क्या डिफरेंसेस है। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस। जैसा कि हम लोग ने देखा कि कैसे टाटा एयरलाइंस जो था पहले टाटा के पास था, फिर जब उसका इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट को समझ में आया, गवर्नमेंट के पास कोई एयरलाइंस नहीं था, तो उसने उसको अपने अंडर में कर लिया, विच टाटाज वर नेवर विलिंग टू गिव। सिमिलरली नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को देखा जाए, है ना, तो इस तरीके से इसको कहते हैं प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड। तीसरा हमारा शेड्यूल सी कंप्राइजेज ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज होंगी वो प्राइवेट सेक्टर में होंगी। इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो उतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अब इसका डिटेल्स थोड़ा देखेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम्स आर जनरली ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको आपने देख लिया, इंडिया एडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, समझ में आ गई बात। इन दिस व्यू इंडिया वुड be a socialist society with a strong public sector but also with the private property and democracy। Economic planning, for the development of Indian economy it was necessary for the government to plan for the economy। Economics planning can be defined as making major economic decisions, what, how and for whom to produce। ये क्लास 11th में आपने पढ़ लिया है सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के रूप में। ठीक है, बाय द कॉन्शियस डिसीजंस ऑफ अ डिटर्मिनेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो भी डिटरमाइन करने वाला अथॉरिटी है, जो भी डिसीजन लेने वाला अथॉरिटी है, उनके लिए कहा गया है कि वो इस तरह से डिसीजन ले, इस तरह से प्लानिंग करें, इस तरह से प्रोडक्शन के बारे में सोचें, इस तरह से क्या करना है, क्या कैसे करना है।
ठीक है, इसके बारे में ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी का एक सर्वे होना चाहिए, उसके रिसोर्सेज आप अपने रिसोर्सेज को एसेस कीजिए कि कितने रिसोर्सेज हैं, कैसे हैं, उसके बाद जब आप डिसीजन लीजिए। प्लान क्या होता है, इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम and strategy worked out in advance for fulfilling an objective. Goals of 5-year plans. The 5-year plans aimed at a removal of economic backwardness of the country and to make India a developed economy. Each 5-year plan listed the basic goals of India's development. These basic goals are growth, modernization, self reliance, equity. Okay, next है growth. Growth refers to an increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. ठीक है, growth refers to increase in the country's capacity to produce the output of goods and services within the country. Growth implies either a larger stock of productive capital or a larger size of supportive services or an increase in the efficiency of productive capital and services. A steady increase in the gross domestic product GDP is a good indicator of economic growth. ठीक है, इसी बात को मैं कर रहा था बार बार। ठीक है, ये याद करने के लिए आसान होगा। इन सम कंट्रीज growth in agriculture contributes more to GDP growth, while in some countries growth in service sector contributes more to GDP growth. इंडिया के केस में सर्विस सेक्टर का योगदान ज़्यादा है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हाल है। मॉडर्नाइजेशन इज नीडेड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक. एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी में क्या है, नई नई तकनीक का प्रयोग करना, स्टार्टअप्स पर जोर देना, मेक इन इंडिया जैसी चीज़ों पर जोर देना, ये एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, चेंज इन सोशल आउटलुक, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी चीज़ें का बड़ा योगदान हो सकता है। शिक्षा के ऊपर जोर देना, हाँ, इस तरह की बातें जिससे समाज में ये नज़र आए कि हाँ, समाज की सोच में बदलाव आ रहा है, समाज प्रगतिवादी है, इस तरह की बातें। सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस मीन्स ओवरकमिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक है, बाहर से जो हेल्प है उस हेल्प के ऊपर रिलाई नहीं करना, उस पर न विश्वास करते हुए अपने संसाधनों पर विश्वास करना, अपने लोगों को। इसलिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब ऐसे जो प्रोग्राम हैं वो भारत को मजबूती देने वाले प्रोग्राम है। जैसे अभी बार बार सरकारें जो है घोषणा कर देती हैं कि 1,000 रुपये दूंगा, 2,000 दूंगा। मैं इसका बहुत बड़ा विरोधी हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम को न पैसे लोगों के हाथ में न देके उनकी जगह मशीनें दे दें। जैसे मान लिया कि 12,000 रुपये की मशीन है, 12,000 रुपये की मशीन को मान लिया गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ है 2,000 देने का लोगों को, तो 2,000 को 12,000 की मशीन 6 महीने के इंस्टॉलमेंट में उसको कट कर ले। 12,000 दिया, 6 महीने नहीं पे किया, तो हो गई 12,000, तो 2006। तो इस तरीके से मतलब स्किल देना चाहिए गवर्नमेंट को। हाथ में मुफ्तखोरी की संस्कृति अच्छी नहीं है, देश के विकास के लिए स्थिति नहीं है, और अंत में लोग लालची हो जाएंगे और वो देश के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन इसे यही हाल वेनेजुएला और दूसरे अन्य कंट्रीज में हुआ, अफ्रीका वाली हालत हो जाएगी। तो मॉडर्नाइजेशन को हमने देख लिया, चेंज सोशल आउटलुक हो गया, सेल्फ रिलायंस पढ़ रहे थे ना। द 5-year प्लान्स स्ट्रेस्ड ऑन यूज ऑफ ओन रिसोर्सेज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज. The policy of self-reliance was considered a necessity because of two reasons. दो रीजन थे, to reduce foreign dependence, विदेश पर निर्भरता कम हो जाएगी, and to avoid foreign interference. और जब देश कमजोर होता है ना, तो बाहर से लोग को बोलने का मौका मिलता है ना, इंटरफेयर करते हैं, आपकी पॉलिसीज को इम्पैक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। Equity aims to ensure that every Indian should be able to meet his or her basic needs: food, house, education, health care, रोटी कपड़ा और मकान प्लस स्वास्थ्य, एंड इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और जो संसाधन है उसमें इनइक्वलिटी नहीं हो, शुड बी रिड्यूस्ड. इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल and promote social justice. Agriculture. The agriculture sector accounted to be the largest share of workforce. So agriculture development was focused right from the first 5-year plans. Okay, policies for growth of agriculture. The two main measures undertaken
to promote growth in the agricultural sector can be broadly categorized as land reforms and green revolution. Land reforms, ठीक है, प्राइमरी refers to the change in the ownership of land holding and और ये लैंड होल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के बीच में. एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएट, इसके माध्यम से क्या है, जो बिचौली है उनका उनकी व्यवस्था को समाप्त करना. और लैंड सीलिंग, इट रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ द लैंड विच कुड बी owned by an individual beyond the specified limit. All lands belonging to a particular person would be taken over by the government and will be allotted to the landless cultivators and small farmers. It helped to promote equity in the agriculture sector. New agriculture strategy, Green Revolution in India. Green Revolution refers to the large increase in the production of food grains due to use of high yielding variety HYB seeds. HYB seeds raised agricultural yield per acre to incredible heights. HYB seeds need reliable irrigation facilities and financial resources to purchase fertilizers and pesticides. Importance Important effects of green revolution: attaining marketable surplus, चूंकि जो प्रोडक्शन बढ़ गया तो मार्केट जो है किसानों के पास एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन हुआ तो वो कुछ अपने पास रख कर वो मार्केट में बाकी बेच देते थे, तो इसी को कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस. जो मार्केट में सरप्लस प्रोडक्शन विच रीचेस टू द मार्केट, दैट इज ए मार्केटेबल सरप्लस. बेनिफिट टू लो इनकम ग्रुप, ठीक है, जिससे जिनके पास आमदनी कम थी उनको काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन से. खेतों में उनको काम भी मिला, ठीक है, और उनको जो सरप्लस हुआ उनके लिए सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो उसके अपनी ज़रूरत के दूसरे सामानों को परचेज किए तो काफ़ी बेनिफिट हुआ उनको. बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, और एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन हुआ उस सरकार ने उसको परचेज कर लिया तो हे टाइम में ये काफ़ी मददगार हुआ, मतलब विपरीत परिस्थितियों में काफ़ी हेल्पफुल हुआ सर सरकार के लिए और जनता के लिए भी. रिस्क इन्वॉल्व्ड अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन, रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, ओके, रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वलिटीज़, दोनों बातें हुई, ठीक है, जो धनी थे और धनी होते गए, ठीक है, जैसे पंजाब के कुछ किसान बहुत ही धनी है, ठीक है, लेकिन वही एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन का फ़ायदा बिहार या दूसरे अन्य राज्यों के को उतना नहीं मिल पाया, स्पेशली हिंदी बेल्ट में. Favorable steps by government to overcome risk. Government provided loans at low interest rate to small farmers so that they could buy needed inputs. As a result, the green revolution benefited the small as well as rich farmers. Economists in favor of subsidies. Government should continue with agricultural subsidies because farming in India continues to be a risky business. अभी भी मानसून पर काफ़ी निर्भरता है, ठीक है, और किसान गरीब हैं तो इसलिए उनको सब्सिडी की ज़रूरत है. मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स आर वेरी पुअर, अधिक संख्या में फार्मर गरीब ही हैं, एंड आर अनेबल टू अफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट्स, और ज़रूरत के जो सामान हैं इनपुट्स हैं वो प्रोडक्शन के लिए जो जो रॉ मटेरियल यूज होते हैं इनपुट्स वो उनको नहीं मिल पाएंगे बिना सब्सिडीज़ के. एलिमिनेटिंग सब्सिडीज़ विल इंक्रीज इनकम इनइक्वलिटीज़, और सब्सिडीज हटा दी जाए तो इनकम की इनइक्वलिटीज बढ़ जाएगी. इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट द सब्सिडीज, अब सब्सिडी के अगेंस्ट में भी बहुत सारे आर्गूमेंट हैं जो कि जायज़ हैं. उसकी क्या बातें हैं, तो इट बेनिफिट्स द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, पहली बात इसका फ़ायदा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को मिलता है, एंड प्रॉस्परस फार्मर्स, और जो किसान अमीर हैं स्पेशली जो पंजाब के जो किसान हैं या हरियाणा के कुछ किसान हैं जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है. एंड नॉट द टारगेटेड ग्रुप, और ऐसे किसानों को कोई फ़ायदा नहीं मिल पाता है सरकार की स्कीम का जो गरीब है. इट इज़ ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट्स फाइनेंसेस, और सरकार के जो फाइनेंस है जो स्थिति है उसकी आर्थिक स्थिति उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है. क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट 1950 to 1990, land reform measures and green revolution helped in enhancing agricultural production and productivity. India became self-sufficient in food production due to green revolution. Land reforms resulted in abolition of a zamindari system. Proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly, but not the
population dependent on it. ठीक है। तो क्रिटिकल अप्राइजल क्या है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का 1950 से 1990 के बीच में, कि लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन इनहांसिंग। तो इससे जो फायदे हुए उनको कुछ गिना देना है, इसमें काउंट कर देना है, और जो इससे फायदा नहीं हो पाया या क्या उसमें सुझाव हो सकता है वो क्रिटिकल एनालिसिस के अंतर्गत आ जाएगा। तो लैंड रिफॉर्म मेजर्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशंस helped in enhancing agricultural production and productivity. India became self-sufficient in food production due to Green Revolution. Land reforms resulted in abolition of Zamindari system, and proportion of GDP contributed by agriculture declined significantly, but not the population dependent on it. तो ये हमारा लास्ट पोर्शन जो दिया है उसका जो लिमिटेशन से उसको फोकस कर दिया। तो ये क्रिटिकल अप्राइजल होगा। Industrial development. 5-year plans stressed a lot on the industrial development. The cotton, textile, jute industries were mostly developed in India. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कॉटन, टेक्सटाइल, jute industries were mostly developed in India. However, there was a strong need to expand the industrial base with a variety of industries. Role of public sector in industrial development. There was a need for leading role of public sector due to the following reasons: shortage of capital with the private sector, ओके, प्राइवेट सेक्टर के पास पूंजी की कमी थी, लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू फॉर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट का अधिकतर फोकस जो है गवर्नमेंट सेक्टर भी थी पर ही था, इसलिए उस पर सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत कुछ इंसेंटिव नहीं दिया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है, तो सच ऑब्जेक्टिव्स कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। गवर्नमेंट का फोकस चूंकि सोशल इशूज़ पे ज़्यादा था, इसलिए गवर्नमेंट ने उस तरह की स्कीम को ज़्यादा लॉन्च किया। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज अ comprehensive package of policy measures that covers various issues connected with the different industrial enterprises of the country। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब किसी देश की जो औद्योगिक नीति है वो ये बताती है कि उद्योगों को चलाने की नीति क्या होगी, उद्योगों के लिए कहाँ से रिसोर्स इकट्ठे किए जाएंगे, उद्योगों को चलाने के लिए जो किस तरह की छूटों को देने की जरूरत है, टैक्स रिबेट है, सब्सिडीज है, किस तरह की व्यवस्था करनी, उनका लैंड अलॉटमेंट है, क्लियरेंस है, बहुत तरह के क्लियरेंस होते हैं, तो उन सब के लिए एक कंपोजिट पॉलिसी बनाने की जरूरत होती है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उन सारे मेजर्स को ध्यान में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, द इंडस्ट्रीज वर reclassified into the 3 कैटेगरीज। शेड्यूल ए ये टोटली जो है गवर्नमेंट के ओनरशिप में था। शेड्यूल बी ये इसमें 12 इंडस्ट्रीज को रखा गया, और इनके बारे में कहा कि प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड, मतलब धीरे धीरे ये स्टेट ने इस पर अपना कंट्रोल बढ़ाया। शेड्यूल सी, दिस शेड्यूल कंसिस्टेड ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी in the private sector. Industrial licensing is a written permission from the government to an industrial unit to manufacture goods। एक सरकार से परमिशन लेना पड़ता था कि हाँ आप ये प्रोडक्शन कर सकते हैं। द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 empowered the government to issue licenses for first setting up of new industries, second expansion of existing ones, and C diversification of products। According to industrial licensing to new industry was allowed unless a license is obtained from the government. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area. License was needed even if an existing industry wanted to expand output or diversify production। Small scale industry SSI, small scale industries is defined with a reference to maximum investment allowed on the assets of a unit। Small scale industries are more labor intensive, that is they generate more employment, need for protection from big firms. Small scale industries cannot compete with the big industrial firms, so government reserved production of a number of products for them, and they were also given concessions।
Foreign trade. Foreign trade in India includes all imports and exports to and from India in order to be self reliant in vital sectors. India has followed the strategy of replacing many imports by domestic production. ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड का महत्व क्या था कि भारत जो है दूसरे देशों से सामान परचेज करे, सेल करे, जो सरप्लस है या हमको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना है उसलिए, और कम्पिटिव कम उस समय पहले के समय में तो हम ज़्यादातर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही लेते थे, इसलिए हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वह सब घाटे में जाता था। ठीक है, अंग्रेजों ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि हमको सेल्फ रिलायंस होने होने नहीं दिया। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ही होता है। ठीक है, इंडिया हैज़ फॉलोड द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्लेसिंग मैनी इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं वो उसको फॉलो किया। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स विद द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो पहले इंपोर्ट करते तो उसकी जगह घर में ही प्रोडक्शन करना, दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दिस पॉलिसी कैन सर्व टू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। पहला क्या है, सेविंग ऑफ प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज, एंड दूसरा क्या है, अचीविंग सेल्फ रिलायंस। दूसरा क्या है, प्रोडक्शन फ्रॉम imports made through tariff and quotas. Protection from imports made through tariff and quotas. अब टैरिफ क्या है, refers to taxes levied on imported goods. The aim was to make them expensive and discourage their use. Quotas क्या है, refers to non-tariff barriers imposed on the quantity of imports and exports. Reason for import substitution: to enable them to compete against the goods produced by more developed economies, to prevent drain of foreign exchange reserves on the import of luxury goods, to prevent drain of foreign exchange reserves on the import of luxury goods. Critical appraisal of industrial development 1950 to 1990. ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहला क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 11.8% टू 24.6%। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990s, largely due to the public sector. Promotion of small scale industries gave opportunities to people with a small capital to get into business. Protection from foreign competition through import substitution enabled development of indigenous industries. Next है licensing. Licensing policy helped the government to monitor and control the industrial production, and public sector made a remarkable contribution by creating a strong industrial base, developing infrastructure and promoting development of backward areas. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है, इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, कभी कभी अरेंज करने वाले जब क्वेश्चंस बनेंगे तो यहाँ पर वो ये काम आएगा। ठीक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आई थी, सेटिंग अप द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया with the prime minister as its a chairperson. 1950 launch of the first 5-year plan. 1951 industries development and regulation act. 1951 कार्वे कमेटी, ये कई बार पूछा जा चुका है, कार्वे कमेटी और विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी constituted in 1955. Duration of first 5-year plan, year 51 to 56. Second इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट था 1956, इसी में ABC क्लासिफिकेशन किया गया था। फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्टेड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम 1966. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991 और प्लानिंग कमीशन रिप्लेस नीति आयोग इन 2015। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको देख लें, ये संदीप गर्ग की बुक में दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को आप पढ़ लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत had been at the roots of the Indian planning process in the form of self-reliance as an objective of planning process. Do you agree with the given statement? Justify the rationale of the given statement. इस तरह के क्वेश्चंस अगर बच्चे पहले से नहीं पढ़े हुए ना तो
एग्री और डिसएग्री में ही फंस जाएंगे और पता चला कि इसमें डिसएग्री लिख दिया और आंसर जो भी लिखेंगे उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए इसमें ध्यान से करना है कि इसको एग्री करना है डिसएग्री करना है। तो इस क्वेश्चन को पहले से पढ़े होंगे, इसमें एग्री ही करना है क्योंकि सेल्फ फाइनेंस की बात पहले से की गई है और इसीलिए हमने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी अपनाई थी, है ना। और इसीलिए स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब सारी बातें जो हो रही हैं वो उसी के तहत है। तो ये पहले से ही ऑलरेडी हिडन रूप फॉर्म में है। इसके बाद आंसर दिया हुआ है, सो पढ़ लेंगे आप। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस वर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू स्टेट्स, डिफेंड और रिफ्यूट। ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया था और कुछ स्टेट में ही इसको फॉलो किया गया था, बाद में इसको इम्प्लीमेंट किया था। गिवन स्टेटमेंट इज डिफेंडेड। ओके, द ग्रीन रेवोल्यूशन implies यूज ऑफ हाई yielding variety seeds HYB seeds which required adequate irrigation facilities and financial resources to purchase fertilizers and pesticides. Because of that, the use of HYB seeds was restricted to more affluent states like Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, etc. Hence, benefits of green revolutions were restricted to few states. Discuss briefly the rationale behind the equity with growth planning objectives for Indian economy. Growth refers to increase in countries' capacity to produce the output of goods and services in an economy. Equity refers to reduction in inequality of income and wealth. When the objectives of economic growth and equity are achieved, it may lead to development with a social justice which may increase the per capita availability of goods and services. Discuss briefly how institutional reforms, land reforms, have played a significant role in transforming Indian agriculture. ठीक है, अभी ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे आप। इस सब सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेंगे। Import restrictions were imposed in India with the dual objectives to save foreign exchange reserves and to be self-sufficient, justify the given statement। इससे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते बच्चे और नहीं कर पाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आया आया भी हुआ है ना। इस क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे आप। इसको लिए अलग से भी वीडियो बना लूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर देख लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मेरी समझ से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।